ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਮਸ 'ਚ 7 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦੋ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੋ ਬੋਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਜਨਾ ਖੁੱਲਰ, ਇਹਦੀ ਉਧਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਖਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਰਾਣਾ, ਜਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਰਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਸੂਰੇ ਰਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਸੰਜਨਾ ਖੁੱਲਰ, ਜਿੰਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਠੂਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੀ ਮੈਸੇਜ ਡਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੂਦੇ ਨਾ ਕੂਦੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਘੁੱਟ ਉੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਉੜਦਾ ਹੈਂ? ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ, ਮਿਗੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ, ਮਿਗੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਬੋਲਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਨਾ ਆਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। सर कह रहे थे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर च होई करदी है और बड़े सारे युवा जेह्ड़े ने पढ़े लिखे जेह्ड़े बेरोजगार घूमे करदे ने, लेकिन उं'दे आस्तै कोई रोजगार कोई नौकरी कोई कुछ नहीं करदा, लेकिन इस तरह दी बैकडोर एंट्री कि'यां देनी? सर मैं ਉਹੀ ਤੇ ਆਖਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਰਨਾ। MA ਕੀਤੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, PhD ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਈ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, पेपर नहीं होए, किवें है सुनाओ, शरी फीस ना इकट्ठी करनी। ये बैकडोर एंट्री क्यों हो रही हैं? सिर्फ साढ़े एक मोदी का बर्फी दिखा होना प्रचार है, एक मोदी का परिवार, ये सिर्फ नौकरियां उन्हें परिवार जितों आ दियाँ। तुम देखिए जुगल किशोर साढ़े MP ने जम्मू के 2 साल उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की है, और 2 साल के बीच ही उन्हें सेंट्रल काउंसल जम्मू हाई कोर्ट के कियां भर्ती करी उड़िया यार? नहीं सुनाओ, ये साढ़े वकील साहब ने पढ़े लिखे दे ना, इन्हें क्यों नहीं दी? सिर्फ 2 साल की प्रैक्टिस करें अंडर रूल। मैं सुनाओ किन्नी प्रैक्टिस है अंडर रूल? इन्नी प्रैक्टिस है क्या? सिर्फ ये नेता हैं सिर्फ अपने ही बच्चे की आगे करा देना। क्या साड़ा कोई अधिकार नहीं है सरकार च नौकरी लेने का? है सानू कोई अधिकार नहीं है कि अं भी अपना परिवार जो है नौकरी करिए, अपना परिवार अगे चलाइए। मैं कुदे ना कुदे आखना ये सरकार साड़ी डेमोक्रेसी साढ़े को खुआ दी है। अही कोई भी सरकार के खिलाफ या अपनी हिम्मत रखिए बोलने का, ये सानू दबाने की कोशिश कर रही है। अही दबने वाले नहीं है। अही जो साढ़े लोगों के खिलाफ इधर गल्लां होंगियां, अही उसदा मुद्दे पर अही सानू मैं आखा ना, सानू पुलिस को मार खानी पे, सानू हवालात पा देना, अही तां भी नहीं रुकना, अही तां भी तो इस सरकार के खिलाफ बोलते रहो ना अगर साढ़े खिलाफ कोई चला दा है। मैं आखना चाहना जिस लड़के ने, मैं नाम नहीं लगा, वो लड़के ने कल राती का फोन स्विच ऑफ किया। मैं वही मेरी गल हुई राती उस मुंडे कन्नै कि है उन्हें भी आख्या निखिल भाई ऐसे बात है, एक लीगल नोटिस उन्होंने मेरे ऊपर निकाला। मैंने पूछा यार क्यों निकाला? ऐसी ऐसी बात है, सर्कुलेशन चल रही थी एक,
तो हमने भी डाल दी कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी चाहिए नौकरियाँ जी। बैकडोर एंट्री जो है वो कैसे होगी इस लड़की की, हमने भी आवाज़ उठाई। और कहीं ना कहीं हमारे कठुआ के ही एक लीडर है, मैं उस लीडर का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आप सबको पता होगा लीडर, क्योंकि कल की चर्चाएं हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, कल की चर्चाएं कह रही हैं कि उस लीडर के लड़के ने उसको इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करके उसको धमकियां दी हैं, तुझे मैं देख लूँगा। वो लड़का इतना डर चुका है, अभी तक मैं कह रहा हूँ 1 बज चुका है, उस लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ है अभी तक। मैं उस लड़के को बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट करने की, मैं शाम को जाऊँ, उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम्स की जो चैट्स हैं वह खुलूँ उससे मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन गुंडागर्दी को हमने ख़त्म करनी है। अगर हम इनके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम युवाओं का बेड़ा गर्क इस बीजेपी सरकार में हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में हमें कितनी इन्होंने पोस्टें निकाली हैं। 3 साल पहले इन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकाली थी, 2.5 बार इन्होंने वो जो है पेपर कैंसिल किए। क्यों? पेपर जो हो गए लीक हो गए। किसने किए लीक, मैं बताता हूँ। इनके डिपार्टमेंट, इसी सरकार में पेपर लीक हुए हैं। तो मुझे लगता है इसी सरकार, ये जो उनके लीडर हैं बड़े बड़े जिन्होंने लाए हैं बाहर से, हमारे ऊपर, हमारे सिर के, हम लोगों के सिर के ऊपर बाहर से जो ऑफिसर बिठाए हैं, उन्होंने किए हैं। 25, सबको पता है 25-25, 30 लाख का एक पेपर बिका है। कहीं ना कहीं इंसाफ हमारे लोग अपने युवाओं के साथ हमारे साथ हुआ है। 10-7 सालों के बाद जो नौकरी डेनिस्ट्री की निकली थी, उसमें लोगों के बच्चों को हमारी बहुत उम्मीद थी कि हम पेपर क्लियर करके वहाँ पे हम जो है नौकरी लेंगे। पर ये बैकडोर एंट्री जो इनकी निकली है हमारी खुले मैडम जी की, कहीं ना कहीं हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहेंगे सरकार को कि इसको पूरा, और सरकार को तो हम कहेंगे, पर हम युवाओं को एक बात संदेश जो है साफ देना चाहेंगे कि आपका हक है यार, आप पढ़े हो, आपके माँ बाप ने आप पे पैसे खर्चे हैं, कहीं ना कहीं बैंक से लोन लिया है, कहीं ना कहीं वो सूद भर रहे हैं आपके, जो उन्होंने पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपका सूद लिया है। तो वो सूद आपने क्या, जो लोन उन्होंने लिया, कैसे आपकी नौकरी लगेगी? आप अपनी पे से ही नौकरी करोगे ना, उसका लोन को ख़त्म करोगे। नौकरियां आपकी नहीं लग रही हैं, ये आप मान ले बात। इस सरकार में आपकी कहीं नौकरियां जो है नहीं लगने वाली हैं, सिर्फ इनकी बीजेपी लीडरों की ही बच्चों की नौकरियां लगेंगी। कांग्रेस का भी राज था, कहीं ना कहूँगा मैं, 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया हमारे देश में। मेरा परिवार भी एक कांग्रेस से आता है, मेरे दादाजी भी कांग्रेसी थे, हमारे नरेश शर्मा जी, मेरे चाचा जी 1-2 बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या वो हमें नहीं हटा सकते थे? क्या वो अपने बच्चों को नहीं हटा सकते थे? वो आपने हमें देखा होगा, हम ज़मीनी स्तर से लोग जुड़े हुए लोग हैं, हम अपनी मेहनत से काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में हम युवाओं का ये फ्यूचर है बेड़ा गर्क हो चुका है। कहीं ना कहीं हमें इसमें रोज़गार नहीं मिल सकता, हमें सरकार को हमें बदलना पड़ेगा ताकि हम नौकरियों के यह कर सके। और हमारे जो आपको पता होगा, हमारे राहुल गांधी जी ने 5 गारंटीज जो हैं हमारे युवाओं को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमें दी थी, जिसमें पहली थी जो 30 लाख नौकरी हमारे पूरे हिंदुस्तान में खाली हैं। जैसे हमारी सरकार इस देश में बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार इस देश में बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे पहला सौगात उन्होंने युवाओं को दिया है। जो 30 लाख नौकरियाँ खाली हैं इस देश में, वो आते ही वो भरेंगे। कई और भी 4 मिनट में ज़्यादा बोलूँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं लोगों को, युवाओं को बोलूँगा कि आप दबने की, अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें, खुल के बात करें। कहीं ना कहीं आपको थ्रेट्स आती हैं, आप हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े होंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। कि आज का जो दौर चल पड़ा है उसे देखकर मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जी की कुछ पंक्तियों की याद आती है, जो कुछ इस प्रकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज मौजूदा सरकार ने हमारी कांग्रेस पार्टी के कई बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं और साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है 1823 करोड़ रुपए का विद इंटरेस्ट जुर्माना लगाया है। मैं कहता हूं इस बारे में बात हो रही है, इस बारे में चर्चे हो रहे हैं, मगर जो जुर्माना, जो इनकम टैक्स 4500 करोड़ रुपए का मौजूदा सरकार पर लगाया है, उस पर क्यों नहीं चर्चा उस पर हो रही? कौन करेगा इस पर चर्चा? मैं अपनी आवाम से पूछना चाहता हूं